Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are doing well. Students, I hope you all are safe and healthy. As you all know that our school is about to open from maybe 30 of September. So we will soon inshallah study in class. Students, in this video, I will define you chapter Silly Lies from your book. Students, you have to listen this video carefully and properly and completely to understand the chapter. Students, in this video, I will give you 3 question answers of this chapter in the last. So now we are starting. Students, this is your book, The Grammar Tree, 2nd edition, book 3. As you all know students, आप इसमें से बहुत सारा काम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और इसी में से एक चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 24, सिली लाइज. नाउ ओपन पेज नंबर 93. ओपन पेज नंबर 93, यूनिट नंबर 24, सिली लाइज. Now I am going to read the chapter. Tony did make up the silliest stories. At school today, when our teacher was telling us about Australia, Tony said he had been there and he hasn't said for us. And yesterday, Tony told us that his mother had bought him a brand new video game. That was not true because I asked his mother, said Nana. And this morning Tony told me that he had a parrot which said, "Hello, Tony," to him, said Zara. It is wrong to tell stories like that. The funny thing is, said Faraz, that Tony really believe what he says. He doesn't know that the difference between right and wrong. Students, silly lies. Silly lies मतलब बच्चों के वो छोटे छोटे झूठ जो वो नादानी में बोल जाते हैं अपनी दोस्तों में वाहवाही हासिल करने के लिए, जो छोटे छोटे झूठ बोल जाते हैं. उसी के बारे में इस पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि टोनी एक बच्चा है जो छोटे छोटे सिली लाइज यानी छोटे छोटे झूठ बोलता रहता है अपने फ्रेंड्स से. जैसे वो ऑस्ट्रेलिया गया था, जबकि वो नहीं गया था, तो ये फराज ने बताया नहीं गया था. फिर उसने बताया कि उसकी जो मम्मा हैं उन्होंने उसे नया वीडियो गेम ला के दिया. दैट वाज नॉट ट्रू. फिर ज़ारा ने बताया कि उसने बोला कि उसके पास एक पैरट है जो हेलो टोनी बोलता है. दैट वाज ऑल्सो अ सिली लाई. छोटे छोटे फनी बट इनोसेंट लाइज वो बोलता था टोनी, जो कि बहुत गलत बात है. My mother says some children don't and they have to be taught, said Zara. Well, let's teach Tony then, said Nana with a giggle. It's time he learned. He sent me all the way down to the park yesterday to see a monkey in a tree. And of course there wasn't one. How shall we teach him? asked Zara. We will tell him the same sort of silly things he tells us, said Faraz. Right, we will begin today. We'll begin today, said Nana. They all laughed. Poor Tony. They were going to have some fun with him. That afternoon, the children all went out to play. Zara ran up to Tony. Students, all the children, Zara, Faraz and Nana decided to teach him a lesson. वो बहुत सिली लाइज बोलता था और बहुत छोटे छोटे झूठ बोल जाता था अपने फ्रेंड से, जो उसके फ्रेंड्स को पता होता था कि ये लाई कर रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है. तो उन सब ने डिसाइड किया कि हम इसके साथ एक
कोई ऐसा लेसन उसके लिए कोई ऐसा लेसन सेट करना चाहिए कि वो आइंदा ये काम ना करे और इस तरह से झूठ ना बोले, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। आपको भी पता है कि छोटे छोटे झूठ बोलना ही गलत बात है, लेकिन ये छोटे छोटे झूठ जिनसे कोई फ़ायदा नहीं है और कोई बात नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों में अपनी शो लगाने के लिए, अपनी शो दिखाने के लिए या अपनी वाहवाही लेने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपना लेवल, बच्चे इस तरह से छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं। तो टोनी के तमाम फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि टोनी को एक लेसन देंगे। टोनी, शी सेड, "Have you seen the tiger cub in the garden over there? It must have escaped from a zoo. It's really cute." "A tiger cub?" said Tony in surprise. "Wow, I must see it. Maybe I can carry it back to the zoo and get a reward." He ran off to the garden. The other children giggled and watched him. Tony searched everywhere. There was no tiger cub to be found. Of course, he went back to Zara very angry. "There was no cub there," he said. "You told me a story, Zara." "Well, it was a true as that escaped monkey you sent Nena to see," said Zara. The next day, Faraz told Tony, "I have just spent 500 rupees on candy," he said. "I got chocolate and toffees." "Have you eaten them all?" asked Tony. "Let me walk home with you, Faraz." "You can, if you like," said Faraz, laughing as he saw the other children smiling around him. "I haven't eaten any of the candy at all. You can share them." So Tony walked home with Faraz. "What about candy?" Tony asked at last. "Can I have some?" So Tony felt in all Faraz's pockets, but of course there was no candy there at all. Faraz laughed and Tony angry face. Students, इस पूरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि टोनी को किस किस तरीके से उसके दोस्तों ने लेसन दिया। "Oh yes, did you really think my mother would let me spend so much money on candy?" he said. "My candy was just the same as the new video game you told us about. Not real at all." "You are all lying to me," Tony said to the children the next morning. "Of course we are," said Nana. "Just like you do all the time. But there is a difference between our telling stories and yours," said Faraz. "What difference is there?" said Tony sulkily. "Well, we do know what is real and what isn't. You don't?" Tony started at Faraz. "Will you stop lying to me if I stop lying to you?" said Faraz, turning red. "Yes, of course," said the children together. "I have got into the habit of telling silly lies, but I see how wrong it is. I promise I shall stop telling stories. You must all help me," said Tony. Students, इस पैराग्राफ में, इस सबक में हमने यही चीज़ सीखी कि एक बच्चा टोनी जो अपने बारे में सिली लाइज यानी छोटे छोटे बेवकूफ़ाना झूठ बोलता रहता था अपने दोस्तों से, उसके दोस्तों ने उसको किस तरीके से सबक सिखाया कि ये झूठ बहुत गलत होते हैं और इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। उसके दोस्तों ने उसके साथ बिल्कुल वैसा किया जैसा उसने किया था। जिस तरीके से उसने बताया था कि वो ऑस्ट्रेलिया गया है, इसी तरीके से उसकी फ्रेंड ने उसको बोला कि एक टाइगर कप यानी कि एक शेर का बच्चा ज़ू से निकल के आ गया है पार्क में। तो वहाँ वो उसको सर्च करता रहा और उसे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला, तो वो एंग्री हो गया। तो फिर उसकी दोस्त ने बताया कि वो तो मजाक कर रही थी, झूठ बोल रही थी। इसी तरीके से उसके दोस्त फराज ने उसके साथ कैंडी का मजाक किया कि उसकी मदर ने उसको बहुत सारी कैंडीज़ ला के दी हैं
और वो उसके साथ घर चले और खाए। जब वो उसके साथ फराज के साथ टोनी उसके घर गया कैंडीज़ के लिए, तो वहाँ कोई भी कैंडी नहीं थी। तो फराज हंसा और बोला मैं तो मजाक कर रहा था, झूठ बोल रहा था। इस तरीके से करके उन तमाम दोस्तों ने उसी तरीके से झूठ बोला जिस तरीके से टोनी उनसे सिली लाइज करता था, छोटे छोटे बेवकूफ़ाना मजाक या झूठ बोलता था। तब उसको समझ में आया और फिर फराज ने भी यही बोला कि मेरी वो कैंडीज़ बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे तुम्हारी मदर ने तुम्हें एक नया वीडियो गेम दिलाया है। तो फिर उसे समझ में आ गया कि मेरे तमाम दोस्त मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। फिर उसने प्रॉमिस किया अपने दोस्तों से कि वो ऐसी स्टोरीज़ कभी भी नहीं बोलेगा, कभी ऐसी झूठी कहानियाँ, झूठी बातें नहीं बोलेगा और ये सिली लाइज बंद कर देगा। तो स्टूडेंट्स, हमें भी अपने फ्रेंड्स से कोई भी झूठी बात नहीं करनी चाहिए कि हमारे फादर ने हमें ये ला के दिया, हमारी ये चीज़ इतने की नहीं इतने की है, चाहे वो हो कम पैसों की मगर हम उसे ज़्यादा करके ज़्यादा पैसों की बताएं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। आई होप यू गेट माई लेक्चर एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ डोंट टेल सिली लाइज, अदरवाइज योर फ्रेंड विल टीच यू अ गुड लेसन। स्टूडेंट्स, कभी भी आप इस तरीके से सिली लाइज मत बोलिए, वरना आपके ही आसपास के आपके दोस्त आपको सबक सिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ we are coming to the question answers. Question number 1 is what kind of stories did Tony make up? Students, question answer I will give you question and answer in this picture. What kind of story did Tony make up? Tony made up the silliest stories. Tony made up the silliest stories. Students, as I told you कि टोनी जो है वो बिल्कुल बेवकूफ़ाना स्टोरीज बताता था। What did Faraz, Naina and Zara decided to do? फराज, नैना एंड ज़ारा ने क्या डिसाइड किया करने के लिए? So students, they decided to teach him a lesson. They also made silly stories with him to realize him that how it is felt. Students, जैसे कि मैंने आपको सबक में से ही पढ़ के बताया, जब लेसन रीड किया उसी में से मैंने आपको बताया कि उसके फ्रेंड्स ने यानी कि फराज, नैना और ज़ारा ने क्या डिसाइड किया था? उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो भी टोनी को उसी तरीके से सिली स्टोरीज़ बताएंगे जिस तरह से टोनी उन्हें बताता था, ताकि टोनी को ये रियलाइज़ हो सके कि वो जो झूठ बोलता है, जो स्टोरीज सुनाता है, वो कितनी बुरी महसूस होती हैं दूसरे को। आई मीन everyone get the point that you are telling him or her lie. हर किसी को स्टूडेंट समझ में आता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है। तो बेहतर है कि हम सच बोलें, वरना इस तरीके से झूठ बोलने से हम अपने दोस्तों की जो नज़रों में हैं वो हमारा मुकाम कम हो जाता है कि ये हमें झूठी झूठी बातें बताता है और फिर आपके फ्रेंड्स आपकी सच्ची बातों पे भी एतबार या यकीन नहीं करते। स्टूडेंट्स, answer number 2 is they decided to teach him a lesson. They also made silly stories with him to realize him that how it is felt. इसका आपको मैंने आंसर भी समझा दिया है। Students, question number 3 is what lesson did Tony learn? टोनी ने इससे क्या सबक सीखा? जब उसके फ्रेंड्स ने उसके साथ इस तरीके से मजाक किया तो टोनी ने क्या सबक सीखा? टोनी फाइनली रियलाइज दैट ही मेड सिली लाइज। टोनी को फाइनली रियलाइज हो गया कि उसने जो झूठ बोले थे वो बिल्कुल बेकार थे, सिली थे, बेवकूफ़ाना थे। एंड इट इज़ रॉन्ग, और ये सब जो है ये गलत है। ही प्रॉमिस्ड टू स्टॉप दिस बिहेवियर। उसने इस बात का प्रॉमिस किया अपने दोस्तों से कि वो अपने इस बिहेवियर को स्टॉप करेगा, रोक देगा, वो आइंदा ये चीज़ें नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर द सिली लाइज, यूनिट नंबर 24, पेज नंबर 93. Students, I have defined you the chapter, but if you don't get any line, any word meaning, so please ask me on WhatsApp. किसी भी वर्ड का आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा हो चैप्टर का, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और इसके 3 क्वेश्चन आंसर्स थे जिसका मैंने वीडियो के एंड में आपको पूरी पिक्चर्स दिखा दी हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स लेके इससे आप अपना काम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप
You understand? All the chapter I tell you briefly, but I know some students have little bit confusion, so ask me on WhatsApp. There are 3 questions in this chapter. Please do your homework as soon as possible. जिस दिन आपको काम दिया जाता है आप make sure करें कि आप उसी दिन वो काम कर लें. जो वीडियो आपने देखी है उसको पूरा सुनिए और सुनने के बाद आप उससे जो काम दिया जा रहा है जल्दी से कर लीजिए ताकि आपका काम बर वक्त मुकम्मल रहे. अल्लाह हाफिज़.